Assalamu alaikum, dear students, welcome to all of you. क्लास 12th इकोनॉमिक्स पेपर ए का आज का हमारा टॉपिक है। हम कॉस्ट थ्योरी पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो है, इट इज़ द एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। Marginal cost simply means addition to total cost when one more unit of the output is produced. For example, if we are producing 10 units of the output and our total cost is rupees 100 for 10 units of the output. If we now produce one more unit of the output, suppose for example now we produce 11 units of the output and total cost rises to 105. This additional cost, that is of rupees 5, the cost which has increased now from 100 to 105, this addition of 5 rupees in the total cost is called marginal cost, because this is addition to total cost when one more unit of the output is produced. According to Ferguson, marginal cost is the addition to total cost due to the addition of one unit of output. And the formula for calculating marginal cost is equal to marginal cost of nth unit. Marginal cost of nth unit is equal to total cost of n minus total cost of n minus 1 unit. Suppose for example अगर हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका टोटल कॉस्ट है ₹100, और अगर 11 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनका टोटल कॉस्ट है 105। तो टोटल कॉस्ट जो है 11 यूनिट्स का वो है 105 माइनस करेंगे हम उसको 100, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ n, नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी अब 10 है, माइनस करेंगे, नहीं 11 है तो उसको माइनस करेंगे, 1 हो गए 10, यानी 10 यूनिट्स के लिए कॉस्ट कितना है हमारा, वो है 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5. बाई दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट फॉर एनी नंबर, एनी unit of the output. Marginal cost is equal to change in total cost divided by change in output. अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, total cost MC of n is equal to marginal cost of n units of output. Total cost of n is equal to total cost of n units of output. The number of units which we are producing, total cost of n minus 1. Total cost of n minus 1 units of output. n minus 1 means अगर हमारा number of units जो हम produce कर रहे हैं वो 10 है, तो -1 मीन्स 9 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट कितना है. डेल्टा TC मीन्स चेंज इन टोटल कॉस्ट, डेल्टा Q मीन्स चेंज इन आउटपुट. सपोज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, यहाँ पर आप देखिए, सपोज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज 135 एंड ऑफ 6 यूनिट्स इज 180. सो फॉर एग्जांपल फॉर प्रोड्यूसिंग, इफ वी आर प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, 5 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, इट कॉस्ट्स अस 135 रुपीज़. एंड अगर अब हम 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यानी 6th यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो या 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कॉस्ट लगता है 180. 5 के लिए हमें कॉस्ट लगता था 135 और 6 के लिए 180. दैट मीन्स this change from 135 to 165 is due to the change in output by one unit, yani that is the 6th unit. Marginal cost of 6th unit will be 180 minus 135, यानी marginal cost जो 6th unit का होगा that will be 180, यानी n units minus n minus 1, that is 5 units का कितना कॉस्ट है 135. 180 minus 135 is equal to 45. that means कि 6th unit जो है उसका marginal cost है 45. Estimation and behavior of marginal cost. Now you can look at this table which shows the behavior and estimation of marginal cost. पहले आप देखिए लेफ्ट हैंड कॉर्नर, लेफ्ट हैंड कॉलम जो है, लेफ्ट हैंड कॉलम, उस पे आप देखिए कि दिए हुए हैं यूनिट्स ऑफ आउटपुट फ्रॉम 0 to 8. In column number 2 we have fixed cost which remains same throughout the level of output, because fixed costs do not change with the change in output. And in the third column we have variable costs, and in fourth column number 4 we have total cost. Total cost is the combination of fixed cost and variable cost. And then we have in the fifth column or right hand column we have the marginal cost. Now when the output is 0, total fixed cost will be positive, or total fixed cost will be 10, and it will remain same throughout the level of production, or throughout the cycle of production. Total variable cost is 0. If the output is 0, variable cost will also be 0, but total cost will be 10, because total cost is a combination of fixed cost and variable cost. Marginal cost will be 0 because we are not producing any unit of the output, and marginal cost by its very definition is additional cost, and additional cost is a variable cost, which addition means variable cost. Additional cost will not be fixed cost.
or marginal cost is always a additional cost, or it is always a concept of, or it is a part of variable cost. It is not a fixed cost. Now when we are producing first unit of the output, fixed cost remain the same, variable cost increase from 0 to 10, and total cost is 20. 10 is of the variable cost, 10 is of the fixed cost. 10 plus 10 is equal to 20, and marginal cost is 10. Now the addition to total cost is, एडिशन टू मार्जिनल कॉस्ट इज 10, यानी टोटल कॉस्ट जो अब हमारा हुआ है उसमें एडिशन हुई है फ्रॉम 10 to 20, देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट इज 10. फर्स्ट यूनिट जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जो कॉस्ट जो इंक्रीज हुआ है दैट हैज इंक्रीज बाई ₹10. नाउ व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग सेकेंड 2 यूनिट्स, our total cost increased from 20 to 28, marginal cost is 8. Therefore total addition to total cost is ₹8. When we are producing 3 units, total cost increases from 28 to 34. Now total cost increases from 6 rupee by 6 rupees. Total cost increase from 28 to 34, that is by 6 rupees, and marginal cost will be 6. 34 minus 28 is equal to 6. इसी तरह से जब हम फोर्थ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट विल बी 38. व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स ऑफ द आउटपुट, टोटल कॉस्ट विल बी 38. इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 34 to 38. टोटल कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 4 रुपीज, मार्जिनल कॉस्ट विल बी 4. इसी तरह से जब हम 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज फ्रॉम 38 to 42. और मार्जिनल कॉस्ट इज 4. Total cost is increased by 4 and marginal cost will be 4. And when we are producing 6 units, total cost is total cost increased from 42 to 48. Now the marginal cost, total cost has increased by 6 rupees. Marginal cost will be 6. इसी तरह से जब हम 7th यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि टोटल कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 48 to 56. दैट इज आवर टोटल कॉस्ट. आवर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज फ्रॉम 6 to 8. व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग 8 यूनिट्स ऑफ द आउटपुट, टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 56 to 72, and our marginal cost increases from 8 to 16. The table shows that marginal cost of n units, nth यूनिट, यानी किसी भी यूनिट के लिए अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, इट विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ दैट नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n-1. यानी टोटल कॉस्ट फिर हम देखेंगे कि उससे पहले जो जितने भी नंबर्स आते हैं, n नंबर्स माइनस उनको, उसका एक करेंगे हम उसको, तो उसके लिए कितना टोटल कॉस्ट बनता है, तो वो हम उसको माइनस करेंगे तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा. व्हेन 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड, देखिए जब हम 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करें, टोटल कॉस्ट इज 20, टोटल कॉस्ट इज 38. टोटल कॉस्ट इज 38. और अगर हम अब फोर्थ यूनिट के लिए टोटल मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्थ यूनिट के लिए, तो हमें वहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना है 38. और n यहाँ पर है 4, n-1, 4 - 1 इज इक्वल टू 3. 3 यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट कितना है 38 माइनस 34. 3 यूनिट्स के लिए 34 है, 4 यूनिट्स के लिए 38 है. 38 माइनस 34 इज इक्वल टू 4, यानी फोर्थ यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट है 4. इसी तरह से जब हम 8th यूनिट अगर हम प्रोड्यूस 8th यूनिट के लिए अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 8th यूनिट के लिए मार्जिनल कॉस्ट जो होगा, टोटल कॉस्ट 8 यूनिट्स के लिए है 72 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n-1. n है 8 माइनस 1 करेंगे उसको तो हुआ 7 के लिए टोटल कॉस्ट कितना है 56. 72 माइनस 56 इज इक्वल टू 16. यहाँ पर आप देखिए 8th यूनिट के लिए मार्जिनल कॉस्ट 16 है. व्हेन ओनली 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, जब हम सिर्फ पहला यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए टोटल कॉस्ट कितना है, फर्स्ट यूनिट के लिए 20 टोटल कॉस्ट है, माइनस करेंगे उसको हम 10, यानी जब हम 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करें उस वक्त टोटल कॉस्ट कितना है 10. तो इसी तरह से आप देखिए कि टोटल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट कितना है 10, यानी for first unit of the output marginal cost is 10. It is evident from the table that initially marginal cost tends to fall and eventually it tends to rise. आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इनिशियली जो है टेबल से आपको ये दिख रहा होगा कि ये टेबल में आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि पहले मार्जिनल कॉस्ट जो है, नाउ फर्स्ट इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. नाउ इट डिक्लाइन्स, first it declines and reaches its minimum, that is 4, and then again it starts to rise. It is evident from the table that initially marginal cost tends to fall and eventually it tends to rise. Falling marginal cost is in accordance with rising marginal falling marginal cost is in accordance with rising marginal product. यानी falling marginal cost means कि marginal product is continuously rising when there are increasing returns to a factor.
falling marginal cost means that marginal product is rising, marginal product of the variable factor is rising, or there is increasing returns to a factor. Rising marginal cost is in accordance with falling marginal product. This means when marginal cost starts to rise up again, it means that marginal product of the variable factor is declining, marginal product of the variable factor is declining, and this is in accordance with the diminishing returns to a factor. Accordingly, marginal cost curve is U-shaped. मार्जिनल कॉस्ट करो इज यूशेप्ड इन अकॉर्डिंगनेस विद द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. जैसे कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में हम देखते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग है मार्जिनल कॉस्ट करो कि ये शेप जो है यू शेप, उसके उस लॉ के इन अकॉर्डिंगनेस इन यानी उस वो जो लॉ है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, उसी के अकॉर्डिंगनेस ये करू जो है बिहेव करती है. इसमें हम देखते हैं कि इनिशियली इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्ट और marginal product of the variable factor starts to increase, which will lead to the decline in the marginal cost, and then a stage of production ultimately reaches when the marginal product of the variable factor starts to decline, or when the marginal cost now starts to rise. इसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट जो है इट इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट ओनली, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट. इट नीड्स टू बी एम्पैथिकली नोटेड दैट मार्जिनल कॉस्ट इज एन एडिशनल कॉस्ट, additional corresponding to an additional unit of output. By definition, additional cannot be fixed cost. Additional cannot be fixed. Otherwise, it would not have been said that it is an additional. Additional means which changes, yani which goes on एडिंग और विच गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग. यानी ऐड कोई हम चीज़ जब करते हैं दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट ए फिक्स्ड. जब ये फिक्स्ड रहता है तो ये ऐड नहीं होगा फिर, यानी उसमें कोई चीज़ फिर चेंजेस नहीं होंगी. अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, यानी जो मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन है, इट इज़ एडिशन टू टोटल कॉस्ट, एडिशन टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ द आउटपुट, और बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ द आउटपुट. अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट होता तो अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज भी करते तो ये कॉस्ट इंक्रीज नहीं होता या चेंज नहीं होता, इसमें एडिशन नहीं होता. बल्कि जो डेफिनेशन है इसकी, बाई इट इज़ वेरी डेफिनेशन, इट मीन्स दैट इट इज़ ए वेरिएबल कॉस्ट. बाई डेफिनेशन एडिशनल कॉस्ट कैन नॉट बी फिक्स्ड कॉस्ट, इट कैन ओनली बी वेरिएबल कॉस्ट. अकॉर्डिंगली द सम टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट बिकम्स टोटल कॉस्ट. और इसी तरह से किसी भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पर अगर हम वहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट्स को ये समेशन उनका करेंगे तो इट विल बिकम इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट. Table 7 illustrates this point. Consider any level of output, say 8 units. So for example यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल cost is equal to, when we are producing 8 units of the output, total variable cost is 62 when we are producing 8 units of the output. Now if we at the level of output of 8 units, if we do the summation of all the marginal costs for all the units, it will become equal to total variable cost. 16 plus 8 plus, या इसी तरह से अगर हम यहाँ से आएंगे 10 plus 8 plus 6 plus 4 plus another 4 plus 6 plus 8 plus 16. Now its summation will be equal to 62. If it is equal to 62, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप ये देखिए, it will be equal to, if we are producing, it will be equal to 62 from 1 to 8 units. 10, 8 plus 6 plus 4 plus 4 plus 6 plus 8 plus 16 is equal to 62, और it is equal to total variable cost. Total variable cost भी 62 आ रहा है. अगर हम फोर्थ यूनिट के लिए आप देखेंगे, फोर्थ यूनिट के लिए देखिए यहाँ पर फोर्थ यूनिट के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा है दैट इज 28. अगर हम यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट को फोर यूनिट्स के लिए इनका समेशन करेंगे तो ये भी इक्वल आएगा 28 के. 10 प्लस 8 हुआ 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 हुआ 28, तो ये भी बराबर है. अब अगर हम 2 यूनिट्स के लिए हम देखेंगे, फॉर प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स ऑफ द आउटपुट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 18, तो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का समेशन करेंगे तो वो भी 18 के बराबर है. 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18. यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट्स इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है या मार्जिनल कॉस्ट जो है, इट इज़ ए वेरिएबल कॉस्ट, इट इज़ ए वेरिएबल कॉस्ट. ज्योमेट्रिकली टोटल एरिया अंडर मार्जिनल कॉस्ट करूँ कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी लेवल ऑफ आउटपुट मेजर्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ दैट लेवल ऑफ आउटपुट. ज्योमेट्रिकली जो एरिया होगा मार्जिनल कॉस्ट करूँ के अंडर corresponding to any level of output measures total variable cost of that level of output. अगर हम ज्योमेट्रिकली के जो एरिया होगा अंडर द मार्जिनल कॉस्ट करूँ के अंडर जो भी एरिया होगा corresponding to any level of output,
यानी किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट तक के लिए जो भी, यानी अगर हम किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट के लिए जो एरिया होगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व के अंडर, वो मेजर करिएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट उस लेवल ऑफ आउटपुट के लिए। मार्जिनल कॉस्ट कर्व के अंडर जो एरिया होगा किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट के लिए अगर हम मेजर करेंगे उसको, तो वो एरिया बराबर होगा उस लेवल ऑफ आउटपुट के लिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा उस लेवल ऑफ आउटपुट के लिए वो उसके बराबर होगा। At OL level of output, area under marginal cost curve is OLSK. OLSK. This is equal to total variable cost. This is because total variable cost is the summation of marginal costs. Total variable cost is the sum total of marginal cost for each unit of a given output. The figure shows that for OL level of output, total variable cost is equal to area OLSK is equal to summation of marginal costs for all units of output between O to L. तो ये था हमारा आज का टॉपिक मार्जिनल कॉस्ट। कल हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट।